Bismillahirrahmanirrahim. Once again, Assalamu alaikum. Walaikum Assalam. Almost 10 to 12 students right now are present. So I will conduct two session of Zoom. In the first session, we will discuss about the uh, strategies and the factors to be considered being an investor. So I am sharing my screen with you. Yes, sir. Okay, this is a lecture number 10. Uh, the topic of the today's lecture is investment factors and the strategies. Okay, is my screen Yes, sir. visible? Yes, sir. Okay, fine. Acha. So number one thing, we will discuss about the a smarter way or the smart way to buy stock. Okay. Today we will talk about the two main things: the factors to be considered and the strategies. So before going to be factors, and we will discuss about the how a person should be smart and the what way a smart way to choose to buy stocks. There are four main factors that you have to consider when you go to stock market or when you go to buy anything as an investor. The factor number one is growth of the company or the growth of the business. When you go to buy any stock or any shares in the stock market, or you want to invest in any company or any business, definitely you will consider growth of that particular company, growth of that particular business. Growth is one of the big factor. uh, Definitely every type of investor, even they are a long-term investor, they are high-profile investor, or they are individuals, or they are from corporate sector. Every individuals or every investor focus the growth of the company that he or she are investing, right? The point number two is the second factor is the valuation of the stock. Means you have to value the book value of that particular stock that you are investing. Like suppose if the stock is undervalued, what will you do? What action you will perform? Will If it's, buy, sir. definitely you will buy that particular stock. If a stock is overvalued, then definitely you will sell that particular stock. So valuation is the key factor that most of the investors are focused. The third factor and the third way to be considered when you go to stock market, that is income of the company, that is earning of the company, how company is performing in terms of profit, in terms of revenue, in terms of earning generating revenues. So these are the three factors that most of the students, most of the investors are focused to invest in the stock market. The point number four is blue chips category. Blue chips category. Can anybody tell me what does it mean by blue chips categories? Yes, yes.
Can anybody tell me the fourth factor which have to be considered? Sir, big companies. Not big companies. Blue chips companies means the company is performing very smoothly growth, very smoothly Consistent growth. consistent growth, and maybe say you can say the market share, the highest market share. Like if you talk about the major shareholder, major share market share companies like Lucky Cement, like Atak, like right now the TRG is very growing company. So the blue chips companies which have a big market share, right? And they are performing consistently in a growing position, right? Yes, So sir. these four factors have to be considered when you go to stock market, and we will discuss these factors you will consider when you go to buy stocks in a stock market. Yes, this is an important thing that things we will cover in the final paper. These are very important factors, the key factors to be considered. Being an investor, you have to focus and you have to, number one, earning per share. The earning per share will give you the, definitely earning per share will give you the earning or the profit or the gaining part of the business. यानी अगर किसी कंपनी की आपको अगर अर्निंग चेक करनी है और इनकम चेक करनी है, आपको प्रॉफिटेबिलिटी चेक करनी है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, बीइंग एन इन्वेस्टर यू विल चेक द कंपनी अर्निंग पर शेयर, कंपनी की अर्निंग पर शेयर आप चेक करेंगे। और अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला अगर कोई स्टूडेंट्स मुझे शेयर कर दे या बता दें क्या होना चाहिए अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला। जी मेहरुन निसा, अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला पता है आपको? Sir, total earnings divided by outstanding shares. जी, टोटल अर्निंग्स जितनी भी कंपनी ने अर्निंग की है उसको डिवाइड कर दें नंबर ऑफ शेयर्स पर, यानी जितने भी कंपनी ने शेयर्स जी। स्टॉक मार्केट में इशू किए। तो अर्निंग पर शेयर का मतलब है कि एक शेयर पर, एक पर्टिकुलर शेयर्स पर कितनी अर्निंग आ रही है। और इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, इसकी Sir, इंटरप्रिटेशन earning क्या per है, share. ये क्या बता रहा होता है? कि आपकी अर्निंग कितनी हो रही है एक शेयर के ऊपर, जी, एक इंडिविजुअल शेयर पे, बीइंग एन गेन कितना हो इन्वेस्टर रहा आई हैव टू चेक कि अगर मैंने एक कंपनी के 100 शेयर्स परचेज किए हैं तो 100 शेयर्स, फॉर एग्जांपल अगर अर्निंग पर शेयर्स जो है वो किसी कंपनी की 2 रुपए, 2 रुपए का मतलब ये, 2 रुपीज़ का मतलब ये है कि अगर मैंने 100 शेयर्स परचेज किए हैं तो मुझे अप्रॉक्सीमेटली 200 रुपीज़ कंपनी जो है वो अर्निंग कर रही है मेरे शेयर्स पर। अगर मैंने दो है। 100 रुपए के शेयर्स परचेज किए हैं तो पर शेयर मुझे जो है ना वो 2 रुपए की अर्निंग मुझे नहीं मिल रही। मैं एज अ शेयर होल्डर हूँ, मैं इन्वेस्टर हूँ, लेकिन कंपनी जो अर्न कर रही है वो 2 रुपए अर्न कर रही है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि लुक फॉर अर्निंग ग्रोथ। हम अर्निंग पर शेयर से पास्ट ईयर्स की अर्निंग देख रहे होते हैं और पास्ट ईयर की अर्निंग्स को कंपेयर कर रहे होते हैं करंट ईयर की, और एक्सपेक्टेड फ्यूचर की अर्निंग्स को ग्रो कर रहे हो, अर्निंग को फोकस कर रहे होते हैं। अब इसमें आपको देखना होता है कि आपको एनुअल रिपोर्ट में, ये कंपनी की इनकम स्टेटमेंट में, ये कंपनी की आपके पास फाइनेंशियल रिपोर्ट्स मौजूद होती हैं, उसमें आपको प्रीवियस ईयर का डेटा उठाना है और प्रीवियस ईयर का डेटा उठाने के बाद आपको उसकी ग्रोथ देखनी है कि कंपनी जो है उसकी अर्निंग पर शेयर जो है वो कितना ग्रो कर रही है। ये नहीं है आपको करंट ईयर की अर्निंग पर शेयर देखनी है, यानी आप जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसी कंपनी के अंदर, बीइंग एन इन्वेस्टर, आप एक शेयर होल्डर कंपैरिजन बन रहे हैं, करना। देन डेफिनेटली यू विल चेक अर्निंग पर शेयर इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, यानी कितना ग्रो कर रही है अर्निंग पर शेयर। सेकंड थिंग,
You will compare earning with dividend payout. What does it mean? मतलब क्या होगा इसका? Sir, the earnings companies earn and the dividend payout, the dividend which is giving to the people, comparison between them. हाँ, क्या मतलब? Why do we need to compare earnings with dividend? Because if the company is growing too much and the dividend is too much low, then you have to check out, na, sir. डेफिनेटली, बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर कंपनी अर्निंग तो कर रही है, अर्निंग पर शेयर तो है कंपनी का, लेकिन कंपनी डिविडेंड नहीं पे कर रही। जब कंपनी डिविडेंड पे जी, नहीं कर रही तो इट मीन्स कंपनी उन पैसों को कहाँ यूटिलाइज कर रही है। यानी अगर कंपनी obviously, sir, कंपनी अर्निंग पर अपने शेयर बिजनेस मतलब में ही लगा। कंपनी अर्निंग पर शेयर का मतलब ये है कि कंपनी जो है वो कंपनी की पर शेयर, एक होता है डिविडेंड पर शेयर, एक होता है अर्निंग पर शेयर। तो हम दोनों को कंपेयर करते हैं कि लेट्स सपोज कि अगर कंपनी की अर्निंग पर शेयर जो है वो 5 रुपये अर्निंग पर शेयर है। कंपनी हर साल 5 रुपये अर्निंग करती है अपने पर शेयर पर, राइट। जी सर। लेकिन डिविडेंड पर शेयर जो है वो 1 रुपी है। यानी कंपनी जो उस 5 रुपये की अर्निंग में से शेयर होल्डर को जो डिवाइड करती है, शेयर होल्डर को जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है, डिविडेंड देती है, वो 1 रुपये देती है। बाकी 4 रुपये क्या करती है? आप कहेंगे बाकी 4 रुपये जो है पर शेयर 4 रुपये जो अर्निंग है वो कंपनी री इन्वेस्टमेंट कर देती है या अपने अच्छा। फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए रिजर्व कर देती है। ठीक है, कंपनी के पास ऑप्शन है ना, कंपनी या तो रिजर्व रख कर दे या री इन्वेस्टमेंट कर दे या तो जी सर। डिविडेंड पे कर दे। तो अगर कंपनी डिविडेंड पे कर रही है तो इट मीन्स के कंपनी की री इन्वेस्टमेंट पोजिशन कुछ भी नहीं है फिलहाल। या अगर कंपनी जी डिविडेंड पे नहीं कर रही है तो कंपनी की अर्निंग क्या मल्टीपल ईयर्स में फ्यूचर में जाके, यानी मिसाल के तौर पर अगर आपने 10 साल का डेटा लिया हुआ है और 10 ईयर्स का डेटा में देख रहे हैं कि कंपनी की जो अर्निंग है वो आहिस्ता 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 ग्रो कर रही है। अब ग्रो की वजह ये है कि कंपनी अपनी अर्निंग को डिविडेंड पे नहीं कर रही बल्कि कंपनी अपनी अर्निंग को री इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो जब री इन्वेस्टमेंट करेगी तो उसका मतलब उसकी अर्निंग ग्रो करनी चाहिए। और अगर वो री इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है और कंपनी सारा का सारा जो है वो डिविडेंड पे आउट कर रही है, ऑलमोस्ट अगर 5 रुपीज़ पर अर्निंग पर शेयर वो अर्निंग कर रही है और कंपनी 4 रुपये जो है वो डिविडेंड पे कर देती है, तो इसका मतलब ये कंपनी ऑलमोस्ट डिविडेंड पे आउट कर देती है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, अर्निंग को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है अमंग शेयर होल्डर्स। तो कंपनी के पास अर्निंग में कुछ भी नहीं बचता। इसका मतलब ये है कि अर्निंग की जो परफॉर्मेंस होनी चाहिए वो कांस्टेंट होनी जी चाहिए सर। थ्रू आउट दी ईयर। या तो कांस्टेंट होगी या ग्रो कर रही होगी। ठीक है, दो दो पॉसिबल। द सर, सेकंड थिंग्स यू हैव टू कंपनीज एज, फोकस। सॉरी सर। यस, बोले। सर, क्वेश्चन कि बहुत सारी कंपनीज हैं जो डिविडेंड पे ही नहीं करती। वो कहती हैं कि आप यही डिविडेंड हमारी ही कंपनी में इन्वेस्ट करें, अगर आप बाहर जाएंगे आपको इतना रेशो मिलेगा प्रॉफिट का, और हम आपको इससे डबल दे सकते हैं। हाँ, जैसे कि बहुत बड़ी ये कंपनीज हैं, एप्पल और गूगल की। हाँ, ये इन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम आपको तकरीबन इतने साल के बाद डिविडेंड पे करेंगे, या बहुत अच्छा डिविडेंड पे जी करेंगे। आप फिक्र नहीं करें। इन टर्म्स ऑफ आपको रिटर्न चाहिए तो रिटर्न आपको शेयर प्राइजेस के मिल अंदर रिटर्न मिल सकती है। जाएगा। ठीक है ना। शेयर प्राइस के अंदर रिटर्न का मतलब ये है कि अगर आप 50 रुपये का अभी शेयर खरीद रहे हो तो आपको ये शेयर 3 साल बाद 500 रुपये का हो जाएगा। तो इन टर्म्स ऑफ आपको रिटर्न वहाँ से मिल जाएगा। अच्छा, third things you have to focus on the earning per share, that consider reinvestment significant earning। अब अब देखिए, अर्निंग्स के अंदर या तो डिविडेंड देखा जाएगा कंपनी कितना कर रही है, और मैंने आपको थर्ड पॉइंट ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आप ये भी कंसीडर करोगे कि कंपनी क्या इन्वेस्टमेंट कर रही है, री इन्वेस्टमेंट कर रही है उनको। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको फोकस करनी है बीइंग एन इन्वेस्टर इन इन द रेशियो ऑफ अर्निंग पर शेयर। यस, किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई पूछ रहे हैं मेरे ख्याल में कुछ? अच्छा, आगे नो चलते हैं सर। फिर। The most important thing, the most important ratio that you have to focus while you are going to buy any stock, it's very important factor, that is price earning ratio. Again, the price earning ratio is a comparison between the market price of the shares and the earning per shares. आप सिर्फ
अर्निंग पर शेयर को फोकस नहीं करेंगे, द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू फोकस दैट इज प्राइस अर्निंग रेशियो। इन द प्राइस अर्निंग रेशियो में आप क्या कर रहे हैं, कंपेरिजन कर रहे हैं बिटवीन प्राइस, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स एंड अर्निंग पर शेयर्स। जब आप प्राइस और अर्निंग को कंपेयर कर रहे हैं तो डेफिनेटली पहले तो मुझे बताएं कि प्राइस अर्निंग रेशियो में जो आप कैलकुलेट करेंगे, लेट सपोज कि प्राइस अर्निंग रेशियो का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है, मैं यहाँ पर एक्सेल की शीट आपके साथ शेयर कर देता हूँ जी। स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को। लेट सपोज कि एक कंपनी ले लेते हैं, कंपनी ए, ठीक है। मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, एक कंपनी ए है, उसकी जो मार्केट प्राइस है शेयर्स की वो है 50 रुपीज़। एक मार्केट में इस वक्त 50 रुपीज़ का वो शेयर्स जो है ना उसकी प्राइस चल रही है। लेट सपोज उसकी अर्निंग पर शेयर जो है, उसकी अर्निंग पर शेयर जो है वो है 20 रुपीज़, या सपोज कर लें 2 रुपीज़, ठीक है, 2 रुपीज़ की अर्निंग पर शेयर। अब इसी के कंपैरिजन अगर हम देख लें, किसी दूसरी कंपनी को देख लें, लेट्स से कंपनी एच, उसकी मार्केट में शेयर प्राइस चल रही है, अच्छा अगर हम अर्निंग पर शेयर को देखें, पहले अर्निंग पर शेयर को देख लेते हैं। एक कंपनी है उसकी शेयर अर्निंग पर शेयर 2 रुपये, और एक कंपनी एच है उसकी अर्निंग पर शेयर जो है वो है 5 रुपये। किसकी अर्निंग पर शेयर ज्यादा है? कंपनी बी, कंपनी एच, मैंने बी नहीं लिखा, एच लिखा है। अच्छा, कंपनी एच की जो अर्निंग पर शेयर है वो ज्यादा है। आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? अगर अर्निंग पर शेयर को देखते हैं तो अर्निंग पर शेयर देखते हैं तो आप एच कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर देंगे? नहीं, आप अर्निंग पर शेयर को सिर्फ नहीं देखेंगे, आप प्राइस अर्निंग रेशियो को भी देखेंगे। अब प्राइस अर्निंग रेशियो लेट सपोज इसकी जो मार्केट प्राइस है वो 50 रुपये और इसकी जो मार्केट प्राइस है वो है 500 का शेयर है, ठीक है, ये 500 का शेयर है। अगर हम प्राइस अर्निंग रेशियो निकालेंगे तो प्राइस अर्निंग का मतलब है प्राइस को डिवाइड कर देंगे ईपीएस से। तो अगर हम इसको 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 25, और यहाँ पर 500 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा 100। अब प्राइस अर्निंग रेशियो जिसकी ज़्यादा होगी वो शेयर ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। जिसकी प्राइस अर्निंग रेशियो लो होगी, जिस कंपनी की प्राइस अर्निंग रेशियो लो होगी, मिनिमम होगी, वो शेयर्स आपको सस्ता पड़ेगा। ये प्राइस अर्निंग रेशियो क्या बता रहा है? 25 और 100 क्या बता रहा है? सर कंपनी को 1 रुपये कमाने के लिए 25 रुपये की रिक्वायर्ड है, प्राइस अर्निंग रेशियो ये बता रहा है। मतलब अगर कंपनी को 1 रुपये कमाना तो उसको 25 रुपये चाहिए। यानी बीइंग एन इन्वेस्टर, मैं अगर कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो मुझे 25 रुपये लगाने पड़ रहे हैं, 25 रुपीज़ लगाने पड़ रहे हैं, तब जाके मुझे जो है ना वो 1 रुपये की अर्निंग हो रही है। लेकिन अगर कंपनी एच में मुझे 100 रुपये लगा रहे हैं, 100 रुपये लगाना पड़ रहे हैं, तब जाके मुझे 1 रुपये की अर्निंग हो रही है। मैं ज़्यादा पैसा कहाँ लगा रहा हूँ कि मुझे 1 रुपये की अर्निंग हो रही है? दोनों में 1 रुपये की अर्निंग लगाने के लिए, दोनों में 1 रुपये की अर्निंग कमाने के लिए मुझे ज़्यादा पैसे कहाँ लगाने पड़ रहे हैं? कंपनी एच में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही है। यानी अगर हम देखें 100 रुपये में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और मुझे 1 रुपये की अर्निंग मिल रही, तो मैं एच में नहीं लगाऊंगा ना पैसा, मैं यहाँ लगाऊंगा, 25 रुपये लगाऊंगा, मुझे 1 रुपये की अर्निंग मिल जाएगी। तो डेफिनेटली यू विल नॉट only focus the earning per share of the company. You will compare price earning ratio of different companies. आप एक कंपनी को दूसरी कंपनी के साथ कंपेयर भी कर सकते हैं और एक कंपनी को अपनी उसकी इंडस्ट्री के साथ, उसके सेक्टर के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यही फोकस लिखी है चीज़ें कि अगर आप देखें यहाँ पर लिखा है मैंने प्राइस अर्निंग रेशियो में लिखा हुआ है द कंपेयरिंग प्राइस अर्निंग रेशियो विद इंडस्ट्री। यानी मिसाल के तौर पर कोई होंडा कंपनी है या टोयोटा कंपनी है या निसान कंपनी है या व्हाटएवर ऑटोमोबाइल सेक्टर में कोई भी एक पर्टिकुलर कंपनी को उठा लें,
या सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर कोई एक कंपनी को उठा लें, तो आपको उस पर्टिकुलर कंपनी को उसकी इंडस्ट्री के प्राइस अर्निंग रेशियो से कंपैरिजन करना है। क्या इंडस्ट्री के अंदर तमाम कंपनीज का या तमाम ऑटोमोबाइल सेक्टर्स का जो है, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के अंदर जितनी भी कंपनीज हैं, तमाम का प्राइस अर्निंग रेशियो सेम है, किसी का ज़्यादा है, किसी का कम है। तो जिसका कम होगा प्राइस अर्निंग रेशियो, जिसका रेशियो कम होगा, बीइंग एन इन्वेस्टर आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ प्राइस अर्निंग रेशियो को नहीं देखना, और भी चीज़ें, और भी की फैक्टर्स हैं जिनको आपको एक साथ कंपैरिजन यानी कंसीडर करना है। प्राइस अर्निंग रेशियो में दूसरी चीज़ आपको देखनी है, मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, एंड कंसीडर लोएस्ट प्राइस अर्निंग। और तीसरी चीज़ आपको फोकस करनी है ट्रेलिंग पीई एंड फॉरवर्ड पीई। तो कोई बताएगा ट्रेलिंग और फॉरवर्ड पीई क्या होता है? सर पास्ट एंड फ्यूचर। करंट एंड फ्यूचर। करंट एंड फ्यूचर। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये जो मैंने प्राइस अर्निंग निकाला है ना, वो ट्रेल निकाला है, ठीक है, जी। ट्रेलिंग। अब मैं आपको फॉरवर्ड दिखाता हूँ। फॉरवर्ड प्राइस अर्निंग कैसे निकलेगा? फॉरवर्ड प्राइस अर्निंग का मतलब ये है, इसका फॉर्मूला बता देता हूँ मैं। एक्सपेक्टेड अपकमिंग ईयर, अपकमिंग अर्निंग, सॉरी 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 प्राइस का मतलब मार्केट प्राइस तो सेम रहेगी, प्राइस of the share divided by expected upcoming EPS। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, प्राइस को, शेयर प्राइस को डिवाइड कर देंगे एक्सपेक्टेड अपकमिंग EPS, ठीक है। अब ये तो आपकी जो EPS है, ये तो आपकी करंट EPS है ना, यानी अभी 2 रुपए जो है ना कंपनी ने अर्निंग कमाई है। कंपनी ए ने 2 रुपए अर्निंग बताई है और कंपनी एच ने 5 रुपए अर्निंग बताई है। अब आपको फ्यूचर की जो अर्निंग है, यानी अपकमिंग ईयर, यानी आने वाले साल में कंपनी की एक्सपेक्टेड अर्निंग कैलकुलेट करनी है। एक्सपेक्टेड अर्निंग लेट सपोज कर लेंगे, इस कंपनी को कैलकुलेट कर लेते हैं। कंपनी ए की जो प्राइस है वो है 50 रुपए, ठीक है, मार्केट प्राइस। उसको डिवाइड कर देंगे अपकमिंग अर्निंग से। अभी यहाँ पर तो हमने 2 रुपए से डिवाइड किया था ना, अब हम अपकमिंग अर्निंग से डिवाइड करेंगे। लेट सपोज की कंपनी की जो अपकमिंग EPS है, फ्यूचर में जो हम फोरकास्ट कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो है लेट सपोज 1 रुपए, सही है, 1 रुपए अर्निंग है उसकी, तो उसका आंसर आएगा आपका 50 रुपीज, यानी फॉरवर्ड PE आ गया आपके पास 50 रुपीज। कंपनी एच है, उसकी जो प्राइस है वो है, मार्केट प्राइस जो है वो 500 रुपए, डिवाइड कर देंगे उसकी अपकमिंग फ्यूचर की EPS को देखेंगे। तो फ्यूचर उसकी जो EPS है वो सपोज कर लें, माइक ऑफ कर दें प्लीज। जो अपकमिंग फ्यूचर की जो इसकी अर्निंग है कंपनी एच की, वो सपोज करें अर्निंग पर शेयर है वो है 20 रुपए, ठीक है। अभी करंट अर्निंग पर शेयर 5 रुपए है, लेकिन अपकमिंग ईयर में कंपनी जो है उसकी फ्यूचर में जो अर्निंग है वो बढ़ने वाली, क्योंकि कंपनी ने कुछ प्रोजेक्ट साइन किए हैं, कुछ उसमें जो है वो असाइनमेंट्स हैं उसके जो कंप्लीट हो जाएंगे इस साल, तो वो कंपनी की अर्निंग बहुत बढ़ जाएगी और कंपनी की फ्यूचर अर्निंग जो है वो 20 रुपए पर शेयर है। अब 25। अब मुझे बताएं कि यहाँ पर आपके पास आंसर डिफर कर गया। अब अगर हम ट्रेल पीए पर प्राइस अर्निंग देखें, तो ट्रेल प्राइस अर्निंग में कंपनी ए ज़्यादा बेटर थी। कंपनी ए जो है उसकी प्राइस अर्निंग रेशियो लोएस्ट थी और कंपनी एच की जो है प्राइस अर्निंग रेशियो हाई थी। लेकिन फॉरवर्ड प्राइस अर्निंग में देखते हैं कि कंपनी ए का जो फॉरवर्ड प्राइस अर्निंग है यानी पीई रेशियो है वो हाई है और कंपनी एच का जो प्राइस अर्निंग रेशियो है वो कम है। देन डेफिनेटली यू विल मूव टूवर्ड कंपनी एच। तो आप ट्रेल और फॉरवर्ड प्राइस अर्निंग को भी आपस में कंपेयर करेंगे। यहाँ मैंने पॉइंट लिखा है ना, आपने देखा ना, यू विल कंपेयर द ट्रेलिंग प्राइस अर्निंग वर्सेस फॉरवर्ड प्राइस अर्निंग।
यानी अपकमिंग फ्यूचर में क्या कंपनी प्राइस अर्निंग देने वाली है, ठीक है, पहले से ही फोरकास्ट कर लेंगे। और कौन से फैक्टर्स हैं जिनको कंसीडर करना है? तीसरे नंबर सर पे ये लिखा हुआ ईपीएस है, सवाल में लिखा होगा। बैठ गया क्या? जी किसने क्वेश्चन पूछा है? गुलाम ने, गुलाम अली ने। हेलो नो सर, ये रिजवान है, ये कहीं बाहर बैठा हुआ है। अच्छा रिजवान क्या कह सर, रहे ये हैं? ईपीएस दिया होगा सवाल में, हर सवाल में ईपीएस दिया होगा या फिर जो चेंज होता है वो भी दिया हुआ होगा। जी पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा आपके पास और प्राइस अर्निंग कैलकुलेट करने को कहेगा तो दोनों गिवन होंगे आपको, एक्सपेक्टेड भी गिवन होगा अर्निंग पर शेयर, और जो आपने बताया फॉरवर्ड वाली अर्निंग वो भी सवाल में दी होगी या खुद जी से जी करनी होगी। सवाल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखो, बीइंग एन इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, क्योंकि यू आर गोइंग टू बी इन्वेस्ट, है ना। यस गिवन सर। गिवन तो होगा, वैसे गिवन तो होगा पेपर में। अच्छा, थर्ड थर्ड थिंग्स यू हैव टू फोकस, दैट इज डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड क्या चीज है, इसको जरा इंपॉर्टेंट है, ये फैक्टर है जो डिविडेंड यील्ड देखना है आपको। डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला कोई बताएगा क्या है? चले मैं आपको बता सर रहा हूँ। डिविडेंड डिवाइडेड बाय प्राइस। हाँ, डिविडेंड डिवाइडेड बाय प्राइस, मतलब डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय शेयर प्राइस, जी द सर। प्रोपोर्शन ऑफ डिविडेंड एंड इन्वेस्टमेंट। यानी शेयर प्राइस का मतलब ये है कि आपने जितना पैसा शेयर्स में खरीदा है, जितनी प्राइस देकर शेयर्स परचेज किया है, उस पर डिविडेंड कंपनी कितना दे रही है। तो यील्ड का मतलब है डिविडेंड पे रिटर्न कितना, इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड रिटर्न कितना मिल रहा है। यील्ड कहते हैं रिटर्न को ना, यील्ड के जी मीनिंग सर। है रिटर्न। यानी हमने जो पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, शेयर्स परचेज किए हैं, उस पर जो है वो डिविडेंड कितना रिटर्न मिल रहा है हमें। अच्छा, जिसका यील्ड जो होगी, डिविडेंड यील्ड लो होगी, उसका मतलब ये द कंपनीज शेयर प्राइस इज हायर, एक तो मतलब ये है, और द कंपनी इज नॉट पेइंग डिविडेंड, ठीक है। अगर किसी कंपनी का डिविडेंड यील्ड जो है वो लो होगा, इसके दोनों मतलब लो हो होगा। सकते हैं, द कंपनी शेयर प्राइस इज हायर, या कंपनी का शेयर प्राइस बहुत ज्यादा है, और द कंपनी इज नॉट पेइंग डिविडेंड, दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है। यस तो सर। तो डिविडेंड यील्ड लो होने का मतलब ये नहीं है कंपनी डिविडेंड नहीं पे कर रही है, मे भी हो सकता है कि शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो। तो उन दोनों चीज़ों को भी आप एज अ की फैक्टर्स के तौर पर कंसीडर कर सकते हैं। द थर्ड थिंग्स, लो है तो समझ में आ रहा है, लेकिन हाई यील्ड का मतलब है, हाई डिविडेंड यील्ड का मतलब है द कंपनीज शेयर प्राइस इज एट इज लो। लोएस्ट, कंपनी की शेयर प्राइस बहुत लो है। यानी यहाँ यूँ समझ लें कि मार्केट कैपिटलाइजेशन या मार्केट शेयर्स कंपनी का बहुत कम है। सर अगर हाई होगी तो फिर ये कंपनी फंडामेंटल के लिए भी अच्छी नहीं है ना, क्योंकि उसकी ग्रोथ नहीं होगी, तो जो कुछ भी कमा रही है वो बांट देती है, तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन तो कर ही नहीं रही है। हाँ, ये फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपने कहा कि कंपनी जो है वो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन नहीं कर रही है, कंपनी जितना कमा रही है वो सारा का सारा डिविडेंड पे कर रही है, तो उसके अंदर ग्रो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन उसके अंदर अगर हम पास्ट हिस्ट्री की देखेंगे, और पास्ट हिस्ट्री में अगर उसका हमें अपकमिंग ग्रो नज़र आ रहा है, इवन कंपनी इज पेइंग गुड डिविडेंड, लाइक बड़ी कंपनीज जी। हैं जो अच्छा इन्वेस्टमेंट करती हैं, आईपीओ इशू करती रहती हैं टाइम बाय टाइम, उनके पास फंडिंग आती रहती है, वो लोन लेती रहती हैं, डेट फाइनेंसिंग करती रहती हैं, और अपने बिजनेस को ग्रो कर रही हैं, और कम शेयर होल्डर को भी खुश रखती हैं, शेयर होल्डर को भी वो डिविडेंड पे करती हैं। तो देयर इज अ लॉट ऑफ फैक्टर्स दैट यू हैव टू कंसीडर, ओके ठीक है। सर। अच्छा, बुक वैल्यू पर शेयर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप किसी शेयर्स को बाय करने जाते हो तो आप बुक वैल्यू चेक करते हो। बुक वैल्यू पर शेयर का मतलब ये है कि आपने अपने कंपनी की बैलेंस शीट देखनी, कंपनी की बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटी को माइनस करना है, तो आपके पास प्योर इक्विटी आ जाएगी, प्योर इक्विटी जिसको हम कहते हैं शेयर होल्डर इक्विटी। लेट अज्यूम कि एक कंपनी है, उसके एसेट जो है वो 10 रुपए के, और उसकी लायबिलिटी जो है वो 4 रुपए की है। तो 10 रुपए के एसेट है और 4 रुपए की लायबिलिटी माइनस कर देंगे, तो जो शेयर होल्डर इक्विटी आएगा वो 6 रुपए आएगा, 6 रुपीज। ठीक है। अब यस छह सर। रुपए जो वो बता रहा है, वो 6 रुपए जो है वो बुक वैल्यू है। बुक वैल्यू का मतलब है कि उसने जो शेयर्स ने, शेयर होल्डर ने जो पैसा लगाया हुआ है,
एक्चुअल में बिजनेस में वो 6 रुपये का लगाया हुआ है। ठीक है, अब उसके मार्केट में शेयर प्राइस की वैल्यू भी 6 रुपये होनी चाहिए। अगर 6 रुपये के करीब करीब है तो इसका मतलब ये है कि शेयर्स जो है वो, फिर आप कंपेयर करेंगे कि शेयर्स जो है वो ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। तो बुक वैल्यू जो होती है वो उसके शेयर प्राइस के कंपैरिजन इक्वल होनी चाहिए समहाउ। अगर बुक वैल्यू के मुकाबले में शेयर प्राइस बहुत ओवर है, फॉर एग्जांपल बुक वैल्यू हमारी अभी 6 रुपये आ रही थी, मैंने एग्जांपल के तौर पर बताई, और बुक वैल्यू उसकी जो है, सॉरी मार्केट प्राइस जो है उस कंपनी की जो है शेयर्स प्राइस जो आ रही है, लेट अस अज्यूम के 15 रुपये आ रही है, तो इसका मतलब शेयर्स जो है वो ओवर वैल्यूड है ओवर वैल्यूड है, जी। ओवर प्राइस है, तो इसका मतलब वो उसकी एक्चुअल प्राइस नहीं है। देन डेफिनेटली प्राइस विल डिक्रीज इन फ्यूचर। जब प्राइस 6 रुपये से नीचे आ जाए या 6 रुपये के करीब करीब आ जाए, तब जाके आप उस शेयर्स को परचेज कर सकते हैं। बुक वैल्यू का फॉर्मूला भी ये लिखा हुआ है कि बुक वैल्यू पर शेयर के ऊपर बात कर रहे हैं, तो टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटीज को माइनस कर दो, आपके पास इक्विटी आ जाएगी, डिवाइड कर दो आउटस्टैंडिंग शेयर से, तो आपके पास बुक वैल्यू पर शेयर आ जाएगा। बुक वैल्यू पर शेयर्स आप कंपेयर करेंगे आप करंट प्राइस ऑफ द शेयर से, फिर आप देखेंगे इज इट ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड, कि मैं ऑलरेडी आपको भी बता चुका हूँ। थर्ड पर थिंग सर जो अगर है, मार्केट की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और हमें पता है कि ये मतलब फ्यूचर में इस कंपनी का शेयर बढ़ेगा, तो हम फिर बुक वैल्यू को इग्नोर कर सकते हैं ना? बुक वैल्यू को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन बुक वैल्यू और मार्केट शेयर्स प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर सपोज करें कि बुक वैल्यू 50 रुपये की उसकी बुक वैल्यू है एक्चुअली, तो ठीक। और उसकी मार्केट प्राइस चल रही है 500 रुपये, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। डेफिनेटली आप बुक वैल्यू के करीब करीब देखेंगे, लेकिन बुक वैल्यू के साथ साथ आप और फैक्टर्स को भी कंसीडर करेंगे। मैंने आपको बताया है कि ईपीएस देखेंगे आप, उसकी प्राइस अर्निंग देखेंगे, उसकी डिविडेंड यील्ड देखेंगे। ठीक है, अगर किसी यस कंपनी सर। को अपनी बुक वैल्यू को इंक्रीज करना है, बढ़ाना है बुक वैल्यू को, लेट सपोज के एक कंपनी की बुक वैल्यू 20 रुपये है और लेकिन उसकी मार्केट में शेयर प्राइस जो है वो 100 रुपये का है। बुक वैल्यू के मुकाबले में शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। बुक वैल्यू कंपनी क्या करेगी, बढ़ा देगी। तो कंपनी बुक वैल्यू बढ़ाने के लिए कंपनी के पास दो तरीके हैं। द कंपनी कैन इंक्रीज इट्स बुक वैल्यू बाय बैक इट्स शेयर्स, यानी कंपनी अपने शेयर्स बाय बैक कर ले, दोबारा से स्टॉक मार्केट में जाके शेयर्स कुछ खरीद ले, बाय बैक कर ले। अभी रिसेंटली किसी यूनिलीवर ने शायद अपने शेयर्स बाय बैक किए थे, ठीक है ना, बुक वैल्यू बढ़ाने के लिए। और दूसरा जो है वो बुक वैल्यू भी बढ़ती है और इससे प्राइस अर्निंग रेशियो भी इंप्रूव होता है, पता है आपको, प्राइस अर्निंग रेशियो भी बेटर हो जाता है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि कंपनी अपने एसेट जो है ना वो इंक्रीज करे, खासतौर पर फिक्स एसेट्स इंक्रीज करे। ठीक है, ये दो ऑप्शन हैं जो कंपनी जो है वो अपनी बुक वैल्यू को इंप्रूव कर सकती है। सर अच्छा, 2 मिनट का टाइम रह गया है, मैं इन चंद चीज़ों को फोकस करूंगा, फिर उसके बाद यहाँ पर हम 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर हम सेकंड सेशन की तरफ जाएंगे। तो थर्ड थिंग, सर आप उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखेंगे कि कंपनी की इक्विटी पे क्या रिटर्न है। रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला है कि रिटर्न ऑन अर्निंग का फॉर्मूला क्या है, वो बताएगा? जी, रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला बताएं जल्दी से। अर्निंग डिवाइडेड बाय प्राइस शायद। नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। शेयर होल्डर इक्विटी, इक्विटी। यानी जितना शेयर होल्डर ने पैसा लगाया है, जितनी शेयर होल्डर जी, इक्विटी है, उस पर उनको कितना, नेट इनकम। उन पे जी कितना प्रॉफिट मिल रहा है ना, कितना प्रॉफिट जी मिल जी। रहा है। तो हायर रिटर्न ऑन इक्विटी विल गिव यू गुड साइन फॉर द इन्वेस्टर। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ज़्यादा हाई है तो वो इन्वेस्टर के लिए गुड साइन है, और अगर लो है तो यू विल फाइंड द रीजंस। हो सकता है किसी 1 साल में, किसी 2 साल में, पर्टिकुलर 1-2 साल में कंपनी की कोई रीजंस, वो रीजंस फाइंड आउट करेंगे आप उसके एनुअल रिपोर्ट से, उसके डिसीजन से, उसके डायरेक्टर की रिपोर्ट से, उसकी ऑडिटर की जो रिपोर्ट होगी उससे रीजंस फाइंड आउट करेंगे। या आप वहाँ स्टॉक बाय करने से स्टे अवे का मतलब है दूर रह जाएंगे, आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ है डेट टू इक्विटी रेशियो, लेकिन डेट टू इक्विटी रेशियो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। अभी यहाँ पर मैं सेशन को एंड कर रहा हूँ। ठीक है, ओके आप सर, 5 मिनट के बाद दोबारा से रीज्वाइन कीजिएगा। श्योर सर।